In this session, we will talk about the renal transplant, the renal cystic disease, and the Goodpasture syndrome, the Alport syndrome, about these disorders. So first, let's talk about some points about renal transplant. Renal transplant में what we do is when we take the kidney, we are going to take the left kidney from the donor and we are going to place this in the right iliac fossa in the recipient. जिससे किडनी लेनी है तो लेफ्ट किडनी लेंगे और कहाँ पे रखेंगे, राइट इलियक फोसा में रखेंगे. एंड जो पुरानी किडनी है ना, उनको वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव, वी आर गोइंग टू कीप इट देयर. द न्यू किडनी विल बी प्लेस्ड इन द राइट इलियक फोसा. It is going, we need to do the HLA matching and the blood group matching before doing the transplant. And after transplant, the most common infection that can happen, it is cytomegalovirus. Cytomegalovirus, there are 2 points to remember from cytomegalovirus. In cytomegalovirus, we have the owl eye inclusion bodies. And the drug of choice for cytomegalovirus, it is ganciclovir. So when it comes to renal transplant, कौन सी किडनी लेनी है? लेफ्ट किडनी. कहाँ पे रखना है? राइट इलियक फोसा के अंदर. राइट. नाउ कमिंग टू द सिस्टिक किडनी डिजीज. So we have the autosomal dominant cystic kidney, polycystic kidney disease, and we have the autosomal recessive. When it comes to autosomal dominant polycystic kidney disease, it is because of two genes, PKD1, or it can be because of PKD2. PKD is one is related with the polycystin that is found on the chromosome number 16, and if the PKD1 gene is leading to autosomal polycystic kidney disease, it is going to be early and it is going to be severe. Whereas अगर PKD2 की वजह से होगा, that is on the chromosome number 4, it is going to be late and mild. वैसे तो नाम में समझ में आ रहा है कि इस पेशेंट के अंदर क्या होगा कि there is going to be multiple cyst in the kidney. किडनी के अंदर बहुत सारे सिस्ट बन जाएंगे. डायग्नोज करने के लिए कम से कम एटलीस्ट देयर हैज टू बी 2 cyst in one kidney. एक किडनी में 2 cyst होने चाहिए एंड अनदर एटलीस्ट 1 cyst in the another kidney. डायग्नोज करने के लिए एक किडनी में कम से कम 2 होने चाहिए और दूसरे वाले में कम से कम 1 होना चाहिए. When it comes to the clinical feature, because इसके अंदर इतने सारे सिस्ट बन जाते हैं तो किडनी की साइज बढ़ जाती है और किडनी की साइज बड़ी होने से द पेशेंट कैन हैव फ्लैंक पेन. ये फ्लैंक किडनी एरिया में पेन होने लग जाता है. देयर इज गोइंग टू बी हिमेचूरिया, हाइपरटेंशन, रिकरेंट यूटीआई होते हैं इनको. और ऐसा नहीं है कि जिनको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता है उनको सिस्ट केवल और केवल किडनी के अंदर होते हैं. दे कैन हैव the hepatic cyst, which is very common. When it comes to, they ask this question, what is the most common extrarenal manifestation? The most common is hepatic cyst. They can have the pancreatic cyst. They can have berry aneurysm. So these are the various extrarenal manifestation can be there. But एक और क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन नहीं देखने को मिलता है ऑटोसोमल डोमिनेंट में. इट इज लंग इन्वॉल्वमेंट. देयर इज नो लंग इन्वॉल्वमेंट. नो लंग इन्वॉल्वमेंट. लंग के अंदर कोई सिस्ट देखने को नहीं मिलता. ये जो सीकेडी होता है, मतलब सॉरी, दिस पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इट कैन कन्वर्ट इनटू सीकेडी. और अगर सीकेडी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी नो दैट सीकेडी के अंदर तो पेशेंट को एनीमिया हो सकता है. द पेशेंट कैन हैव रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी. सो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज वाला जो पेशेंट है उसको आगे चल के एनीमिया, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी भी होगा, क्योंकि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज सीकेडी में कन्वर्ट हो सकता है. इसका ट्रीटमेंट में we don't have to do much thing. We have to maintain, one is hydration. तो हाइड्रेशन मेंटेन करना है. दूसरा, अगर इन पेशेंट का सोडियम कम हो रहा होता है, वी कैन यूज 12-leptan. देन नथिंग मच अपार्ट फ्रॉम दैट इज टू बी डन. और ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, इट डज नॉट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी. इट डज नॉट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी. नो रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी. Right? So these are the points to be remembered when it comes to the autosomal dominant polycystic kidney disease. It can be because of PKD1, can be because of PKD2. PKD1, it is chromosome number 16, PKD2, chromosome number 4. Then comes the autosomal recessive polycystic kidney disease. Autosomal recessive जो होता है, it is because of chromosomal number 6 defect. Chromosomal number 6. Now, chromosome number 6 पे there is a gene that is fibrocystin. It is basically a defect of fibrocystin.
फाइब्रोसिस्टीन का डिफेक्ट होता है। और क्योंकि इसके नाम में देखो आप फाइब्रो आ रहा है, मतलब कि क्या होगा कि जब ये डिजीज होता है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसके अंदर फाइब्रोसिस भी होगा। कैसे होगा? देयर इज गोइंग टू बी किडनी सिस्ट, सो द किडनी साइज विल बी मोर, सो किडनी जो होगा पल्पेबल होगा एट बर्थ. There can be hepatic fibrosis. Look at this, fibrosis is there and there is pulmonary involvement is also there. ऑटोसोमल डोमिनेंट में पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ऑटोसोमल रेसेसिव में पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. देयर इज हाइपोप्लेजिया, लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं होते, किडनी बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि सिस्ट की वजह से, एंड द हेपेटिक फाइब्रोसिस विल बी ऑल्सो देयर एंड इट इज ड्यू टू डिफेक्ट इन विच जीन? फाइब्रोसिस्टिन. इसीलिए देखो इसके नाम में फाइब्रो आ रहा है, सो देयर इज गोइंग टू बी फाइब्रोसिस. Then there is a disease called as juvenile nephrophthisis. That is due to defect in the nephrocysteine. Defect in the nephrocysteine gene. अगर nephrocysteine खराब होगा तो the patient will have multiple cysts in the kidney plus this patient will have growth retardation. अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलता है ना कि बच्चे के अंदर किडनी के अंदर बहुत सिस्ट है और उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रही, ग्रोथ कम हो रही है, देन दे आर टॉकिंग अबाउट जुवेनाइल नेफ्रोप्थोसिस. अगर किसी को जुवेनाइल नेफ्रोप्थोसिस है और साथ में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी हो गया, दैट इज कॉल्ड एज सीनियर लुकन सिंड्रोम. सो अगर उन्होंने बोला, सबसे पहले आप देखो कैसे डायग्नोस करना है. अगर उन्होंने बोला कि किडनीज के अंदर बहुत सिस्ट है, तो आप देखो लंग का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है. अगर लंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मोस्ट लाइकली दे आर टॉकिंग अबाउट ऑटोसोमल डोमिनेंट. अगर लंग का इन्वॉल्वमेंट है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया है, देन इट इज गोइंग टू बी ऑटोसोमल रिसेसिव. देन जुवेनाइल नेफ्रोप्थोसिस में क्या होता है? देयर इज गोइंग टू बी ग्रोथ रिटार्डेशन. अगर वो बोलते हैं कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, ग्रोथ नहीं हो रहा है, साथ में सिस्ट है, तो जुवेनाइल नेफ्रोप्थोसिस. देन जुवेनाइल नेफ्रोप्थोसिस विद रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, दैट इज कॉल्ड एज सीनियर लुकन सिंड्रोम. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेडुलरी सिस्टिक डिजीज एंड मेडुलरी स्पंज किडनी डिजीज. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले बात करते हैं मेडुलरी स्पंज डिजीज. मेडुलरी स्पंज डिजीज में देयर इज गोइंग टू बी सिस्ट प्लस देयर इज गोइंग टू बी रीनल स्टोन. रीनल स्टोन होंगे, तो सिस्ट के साथ में रीनल स्टोन आ रहे हैं, देन इट इज गोइंग टूवर्ड्स स्पंज डिजीज. कैसे याद रखना है? याद रखने का तरीका हो गया, स्टोन आ रहा है, स्पंज डिजीज, एस फॉर स्टोन, एस फॉर स्पंज. अगर बोलते हैं मेडुलरी सिस्टिक डिजीज, तो इसमें पेशेंट में सिस्ट तो होगा बट देर इज नो रीनल स्टोन, नो रीनल स्टोन, एंड इट्स ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ यूरोमोडुलिन. यूरोमोडुलिन के डिफेक्ट से होता है, राइट. सो अगेन यू कैन सी मेडुलरी सिस्टिक में तो सिस्ट ही होगा, केवल नाम में ही दिख रहा है, केवल सिस्ट होंगे. मेडुलरी स्पंज में क्या होगा? सिस्ट के साथ में क्या मिलेंगे? स्टोन्स मिलेंगे, राइट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट. दीज आर जस्ट द कीवर्ड्स. इनके बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें हमें केवल कीवर्ड पकड़ के डायग्नोस करना आना चाहिए. मैं वापस से समझा रहा हूँ. अगर उन्होंने बोला कि पेशेंट को केवल और केवल सिस्ट है एंड देर इज नो लंग इन्वॉल्वमेंट, नो लंग इन्वॉल्वमेंट, दैट इज गोइंग टूवर्ड्स autosomal dominant polycystic kidney disease. If they say cyst plus lung involvement is there, pulmonary hypoplasia है, then they are talking about autosomal recessive polycystic kidney disease. If they say cyst है plus बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही, then they are talking about juvenile nephrosis. If they say there are two disease now, medullary cystic disease and medullary sponge kidney disease. तो सिस्टिक वाले में तो केवल सिस्ट होगा, देर इज नो स्टोन, नो रीनल स्टोन. एंड मेडुलरी स्पंज में देयर इज गोइंग टू बी सिस्ट, क्योंकि एस आ रहा है तो स्टोन भी होगा, राइट. दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द डायग्नोसिस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डिसऑर्डर्स, द नेक्स्ट इज एल्पोर्ट सिंड्रोम. एल्पोर्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि जो कोलेजन बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाता है, दैट इज द टाइप 4 कोलेजन, वो अच्छे से नहीं बनता. जो टाइप 4 कोलेजन होता है वो डिफेक्टिव होता है. और टाइप 4 कोलेजन में भी कौन सी चेन? अल्फा 5 चेन. सो देयर इज अ डिफेक्ट इन द चेन अल्फा 5 चेन of the type 4 collagen, means the basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन की अल्फा 5 मेन अल्फा 5 चेन खराब होती है. अगर अल्फा 5 चेन खराब होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से, तो इट विल बी इरेगुलर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन. जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इट इज गोइंग टू बी इरेगुलर, उसकी थिनिंग हो जाएगी, और उसकी वजह से यू आर गोइंग टू हैव अ क्लासिकल ट्रायड ऑफ सिम्टम. द क्लिनिकल फीचर इज गोइंग टू बी क्लासिकल ट्रायड. The patient will have hematuria. There is going to be sensory neural hearing loss plus anterior lentigonus.
anterior lenticonus. So in Alport syndrome, this is the classical triad of symptom: hematuria, SNHL, and anterior lenticonus. What is anterior lenticonus? See, for example, here is the representation of the eye, and here is the lens. Normally the lens is like this. लेंस का आप एंटीरियर साइड का कर्वेचर देखो, नॉर्मली ऐसा होता है, बट एल्पोर्ट सिंड्रोम वाले पेशेंट में लेंस का कर्वेचर जो होता है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है, एंटीरियर साइड में एकदम कोन शेप का हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर लेंटिकोनस. लेंस जो है कोन शेप का हो गया, राइट. सो दिस इज द एल्पोर्ट सिंड्रोम. द नेक्स्ट दैट वी आर डिस्कसिंग इज द गुड पास्चर सिंड्रोम. गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आ रही है. बेसमेंट मेम्ब्रेन में इस बार क्या हुआ कि एल्पोर्ट सिंड्रोम में तो जो कोलेजन बना था ना वो ही खराब बना ही खराब था. लेकिन गुड पास्चर सिंड्रोम में कोलेजन तो अच्छा बना है, बट गलत एंटीबॉडी बन रहे, वो जाके उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को खराब कर रहे. तो एल्पोर्ट सिंड्रोम और गुड पास्चर सिंड्रोम में डिफरेंस ये है, एल्पोर्ट सिंड्रोम में द बेसमेंट मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज डिफेक्टिव, वो बनी ही खराब है. बट गुड पास्चर सिंड्रोम में बेसमेंट मेम्ब्रेन तो अच्छी बनी थी, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, बट इम्यून सिस्टम हैज मेड अ रॉन्ग एंटीबॉडी एंड दैट इज डिस्ट्रॉइंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन. दैट इज कॉल्ड एज गुड पास्चर सिंड्रोम. सो गुड पास्चर सिंड्रोम में the pathogenesis is, it is seen with the patient who are having a peculiar type of HLA DRB1. उसकी वजह से there is a wrong antibody, and this wrong antibody is against alpha 3 chain of basement membrane. अल्फा 3 चेन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन को खराब करेगा. बेसमेंट मेम्ब्रेन दो जगह पे होती है, रीनल में है एंड लंग्स में. तो हमें ये देखना होता है कि ये एंटीबॉडी जब इस पे अटैक कर रही है तो कहाँ पे कर रही है, केवल किडनी में कर रही है या किडनी और लंग्स दोनों पे कर रही है. इफ इट इज जस्ट इफेक्टिंग द किडनी, इफ इट इज ओनली इफेक्टिंग द किडनी, दिस इज कॉल्ड एज anti-GBM डिजीज, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज. ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज. अगर किडनी और लंग्स दोनों में बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एंटीबॉडी अटैक करती है, रीनल एंड लंग इन्वॉल्वमेंट बोथ आर देयर, देन इट इज कॉल्ड एज द गुड पास्चर सिंड्रोम. So if there is a wrong antibody against the alpha 3 chain of basement membrane, हमें देखना है वो एंटीबॉडी कहाँ पे अटैक कर रही है, केवल किडनी वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन पे या लंग वाली, दोनों पे कर रही है. अगर किडनी पे करेगी anti-GBM डिजीज, अगर किडनी लंग्स दोनों पे करेगी, इट इज गोइंग टू बी गुड पास्चर सिंड्रोम. हाउ द पेशेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट टू अस, this ratio is 6:1, and the clinical feature that is going to be there is this patient will have hematuria because the basement membrane is getting damaged. This patient will have hemoptysis. There is going to be alveolar hemorrhage. Alveolar hemorrhage होने की वजह से पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा. There is going to be tachypnea, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, हिमेचूरिया होगा, हिमोप्टाइसिस होगा, एल्वुलर हेमरेज होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, टेकिपनिया हो रहा होगा. देयर इज गोइंग टू बी हाइपरटेंशन ऑल्सो. दीज आर द वेरियस सिम्टम्स दैट विल बी देयर. अब जब ये एंटीबॉडीज किडनी में अटैक करती ना बेसमेंट मेम्ब्रेन में, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन खराब होने से क्या होता है, पैराइटल सेल एकदम से उनको स्पेस मिल जाता है और वो एकदम से बढ़ते हैं. देयर इज गोइंग टू बी डिफ्यूज प्रोलिफरेशन ऑफ द पैराइटल सेल्स, एंड डिफ्यूज प्रोलिफरेशन से देयर कैन बी क्रिसेंट फॉर्मेशन. अगर आपको याद है मैंने नेफ्राइटिक सिंड्रोम में पढ़ाया था, तो गुड पास्चर सिंड्रोम में व्हाट इज हैपनिंग, द एंटीबॉडीज आर अटैकिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन. जैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन खराब हुआ, पैराइटल सेल को जगह मिल गई, वो एकदम से प्रोलिफरेट करेगी और क्या बना देगी, क्रिसेंट बना देगी. सो देयर इज गोइंग टू बी डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड देयर विल बी क्रिसेंट फॉर्मेशन. अगर क्रिसेंट फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज आरपीजीएन, रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. आरपीजीएन हो सकता है. सो गुड पास्चर सिंड्रोम कैन डेवलप आरपीजीएन, द क्रिसेंट फॉर्मेशन इज देयर. आप वो नेफ्राइटिक सिंड्रोम वाला वीडियो देखोगे तो उसमें सबसे एंड में मैंने आपको ये पढ़ाया था, राइट. पैराइटल सेल रप्चर, सॉरी बेसमेंट मेम्ब्रेन के रप्चर होने से पैराइटल सेल का बढ़ना, दैट इज द क्रिसेंट फॉर्मेशन, आरपीजीएन हो सकता है. अगर हम इसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं तो देयर इज गोइंग टू बी लीनियर डिपॉजिट्स अलॉन्ग द बेसमेंट मेम्ब्रेन. वो एंटीबॉडीज पूरे उस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लीनियर डिपॉजिट्स दिखेंगे, समथिंग लाइक दिस. हियर यू कैन सी द लीनियर डिपॉजिट ऑल ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, पूरा ऐसा लाइन सा बन रहा है, राइट, लीनियर डिपॉजिट. दिस is a ANCA negative disease. Chest X-ray में you can see the alveolar hemorrhage. Basically bilateral haziness आपको देखने को मिलेगा. In the chest X-ray you can see bilateral haziness. Normally तो chest X-ray बिल्कुल black होता है क्योंकि एयर होती है. अब यहाँ पे तो इतना सारा हिमोप्टाइसिस हो रहा है, इतना सारा हेमरेज हो रहा है ना, ब्लड इज वाइट.
So you can see that black white mixed shadow दिख रहा है, so haziness दिख रहा है. There is a haziness in the bilateral lung fields are there. How we are going to treat this patient? For the treatment, we'll give steroid, or we can go for plasmapheresis to remove these bad antibodies. If not, then we can try azathioprine. So this is how we approach Goodpasture syndrome. So एक बार इस पूरे चैप्टर को हम समराइज कर लेते हैं. What we have discussed. सबसे पहले हमने डिस्कस किया if there is cyst in the kidney. Then you have to see the various other things. कि cyst के साथ में is there any, they are talking about the lung involvement or no lung involvement. If there is no lung involvement, then it is autosomal dominant polycystic kidney disease. Autosomal polycystic kidney disease, it can be because of chromosome number 4, chromosome number 16. अगर वो बोलते हैं कि साथ में लंग में भी इन्वॉल्वमेंट है, लंग हाइपोप्लेजिया है, लंग अच्छे से डेवलप नहीं हुए, हाइपोप्लेजिया, देन इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, दैट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6. और कौन सी चीज, कौन सा प्रोटीन इसमें खराब होता है? फाइब्रोसिस्टीन. फाइब्रोसिस्टीन. ऑटोसोमल डोमिनेंट में कौन सा था? पॉलीसिस्टीन. देन वी हैव डिस्कस्ड, अगर वो बोलते हैं कि सिस्ट है किडनी में प्लस देयर इज डिक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है, देन दे आर टॉकिंग अबाउट जुवेनाइल नेफ्रोप्टिसिस. जुवेनाइल नेफ्रोप्टिसिस, दिस इज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ द नेफ्रोसिस्टीन. नेफ्रोसिस्टीन का डिफेक्ट है. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू डिजीज, द मेडुलरी सिस्टिक डिजीज and the medullary sponge disease. इन दोनों में सिस्ट होता है. डिफरेंस ये है कि मेडुलरी स्पंज में देयर इज रीनल स्टोन, वेयर इज मेडुलरी सिस्टिक में नो रीनल स्टोन. राइट. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एल्पोर्ट सिंड्रोम. एल्पोर्ट सिंड्रोम में क्या होता है? कौन सा चेन खराब होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का? अल्फा 5 चेन. अल्फा 5 चेन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज डिफेक्टिव. अगर ये खराब होगा तो देयर इज गोइंग टू बी क्लासिकल ट्रायड ऑफ सिम्टम, दैट इज हेमेचूरिया, SNHL, sensorineural hearing loss and anterior lenticonus. Then we have discussed about the Goodpasture syndrome. Sometimes what happens is there is a wrong antibody that is formed against the alpha 3 chain of the basement membrane. अल्फा 3 चेन के अगेंस्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, एंटीबॉडी उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है. अब ये दो जगह पे हो सकता है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन दो जगह पे, किडनी के अंदर है, लंग्स के अंदर है, तो ये एंटीबॉडी दो जगह पे अटैक कर सकती थी, या तो किडनी पे करती या किडनी और लंग्स दोनों पे करती. अगर केवल किडनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंटी GBM डिजीज, और किडनी और लंग्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज गुडपास्चर सिंड्रोम. सो किडनी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हिमेचूरिया होगा, और लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हिमोप्टाइसिस होगा. राइट. सो ये दीज आर द स्मॉल डिजीजेज आर देयर. छोटी छोटी डिजीज है, इनके बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन अगर आपको ये सारे कीवर्ड पता है ना, तो यू कैन इजीली मेक आउट द आंसर इन द एग्जाम इन दोज इजी क्वेश्चंस. राइट. दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द न्यू नेफ्रोलॉजी. थैंक यू.